1990 में my dad did a crore worth of revenue in his first year as a B2B business, and he was all in the newspapers and everything, and the next year his company shut down. इस उम्मीद में कर रहे हैं कि एक दिन बन जाएगा, अगर उसको एंजॉय करने के लिए तब ना आपके पास दोस्त होंगे ना फैमिली मेंबर्स, अब उनकी लाइफ ऐसी हो चुकी होगी, they are also okay. What I've realized in 5 years or whatever entrepreneurship I've done is that I now want to be more happy than rich. मैं हूँ पंडित, ठीक है, पर दिमाग वो बनिए वाला ही चलता है कि भाई इतना पैसा क्यों खर्चा करना। मतलब अगर मेरे पास इतना पैसा होगा कि मतलब मैं डिफेंडर ले लूं, पर मैं ट्राई यही करूंगा कि टाटा की कोई गाड़ी, थार से ही काम चल जाए, थार से ही काम चल जाए। I think it was definitely being uncomfortable with the fact that I'm not going to get a lovely paycheck hitting my account every first of the month. That's the whole point, that there's this ideology, that persistence breaks resistance. That is the whole point. You have to be persistent in this journey. I'm Riya Rustagi. I'm the founder of Psychedelic, a company built over mental performance and brain health. We build wearables in the space of headphones, and that's what we do. But over the last few years, we've experienced what every founder eventually experiences: the sleepless nights, the overthinking, and so much anxiety. And the moments that what if this doesn't work? Because what if I'm not a founder? Who am I? And we realize that while we celebrate the highs and the unicorns and the success and everything good over LinkedIn and Instagram, we do not share how many sleepless nights, how many times we've almost have nil balance in our bank account, and how many times we've almost burnt out. And that's why we started Entrepreneur Shit, because it is a place where we can strip away the filters and just talk that no matter how much you make the company reach at a level, it's still difficult, and it always gets difficult, be it financially, be it personally. And one thing that very recently happened was one of my team members said, "You must be earning 1,000 rupees an hour." And I laughed. I was like, "Are you serious? You're not earning that much? Then what's the whole point?" And I was like, that's the whole point, that we don't have time, we don't have money, but this vision and this passion that we have, and with the hope that someday we'll have both of them as well. So with that part, I would like to introduce to this amazing panel who have gone through it for quite a few times and have been in this journey for quite a few years. So I'll start with Snehal. He's the founder of Truly Madly and has turned modern love into like just another place. He's the founder of this amazing app, and I suppose 90% of the people here know about Truly Madly. Thank you so much, Snehal, for joining us. Then we have Prateek from Mandalooms, a Shark Tank founder, who has turned travel, like who does not love travel, into an amazing brand experience. We have Karan. Karan is a well-known name, another Shark Tank brand. He has been recognized for his homegrown audio products called Deciwood, and has been in this journey again for quite some time now. I think Deciwood was on season 1. Yeah. Yes. And then we have Dhananjay, founder of Blip, formerly known as Parkmate. Now who's adding technology into the space of parkings. Thank you so much for joining. Thank you. It's a pleasure to be here. We have Vanshika also, who's supposed to join us in another 15 minutes. And she's the founder of Fingerprint Labs, who's into marketing and content creation, which is the new, which is an alternate world of AI, basically. So I will not take much of the time. We will just try to keep this as spontaneous. If you have any questions in the middle or follow-up questions, please just raise your hands. Himani or Shruti or Ritesh from my team will get you a mic, or we can just be vocal. I think that's pretty easy for us to do. We'll jump to the real part. No bullshit, just honesty and transparency, because the whole point of this is to make founders feel they are not alone in this. And who better to do it than other fellow founder.
So I'll start with Snehal. What's the biggest price that you've paid as a founder to achieve your goal and follow your ambition, basically? Yeah, so I think the price, there are many prices that we pay, and nothing to do with the money here, right? So be it time with family, be it time with friends, be it our own health, because we are always not caring about our health, because that always takes the most backseat when we are juggling so many things around. Exactly. And I think over time, I have realized the definition of ambition needs to change, right? And I think especially it happens in your 30s when you realize that your body is now not that young as it used to be. Yes. It is not that easy to keep doing 18-hour long shifts every day, all days of the week. And then I think happened with me, I don't know about others, but change the definition of ambition to be able to do all this while maintaining some form of balance. What we are always doing, but we do tend to take for granted our families, our friends, our personal health, our life, our overall lifestyle is really shit, right? So right, वो हम इस उम्मीद में कर रहे हैं कि एक दिन बन जाएगा, बट अगर उसको एंजॉय करने के लिए तब ना आपके पास दोस्त होंगे, ना फैमिली मेंबर्स, आप उनकी लाइफ ऐसी हो चुकी होगी, दे आर ऑल्सो okay, they have started to accept कि ठीक है यार ये तो नहीं होता, Exactly. right? So what will you do with that money? And probably your health will be so bad you won't have much time also to enjoy that money, right? So take it like live a whole life. That's what I try to do. Of course, easier said than done, but we can only try. Correct. Pratik, some personal experience where you had to choose your business over your personal life, which made the whole thing, I think, a little bit more difficult. Yeah, my biggest sacrifice is for sure my riding. So I will just tell you, I started Wonderlooms in 2019. Before 2019, I had clocked around 120,000 kilometers on a bike, done South Asia and wherever you have dreamt of. And after 2019, I've just done one ride to Ladakh. That is also for 7 days in 2023. And 4 years later. Right now we are at 25. So my biggest sacrifice, what I feel, is the riding, the passion what I had, that was my passion when I opened Wonderlooms, right? I was an adventure tourer and then I started, that let's get into this market. But I never thought in the starting that, I had to sacrifice the biggest passion. What I've realized in 5 years or whatever entrepreneurship I've done is that I now want to be more happy than rich. When I started this, I was like, 100 crore karenge, 1000 crore bhi kar lenge. And it was like very approachable. Yes, it's still approachable and it's still in the vision. But the point is, now I want to go back home at 7 o'clock, play with my daughter, usko basketball sikaun, and then watch TV soaps at Netflix or whatever. Oh my God. So this is such an amazing thing to hear, because I'm the mother of a 1-year-old. My daughter is down the hall in a corridor. And when we raised funding last, I got to know that I was pregnant, and almost everything happened in the same 2 months. मेरी DD भी चल रही थी और मेरे blood test भी चल रहे थे. And उस पूरी journey में, because जब आप एक बड़ा राउंड उठाते हो तो उसके साथ गोल्स और माइलस्टोन्स आ जाते हैं कि भाई ये इतने टाइम में अचीव करना है, नेक्स्ट राउंड तभी उठ पाएगा. एंड देन प्रेगनेंसी 9 मंथ के टाइम के साथ आती है विद द जर्नी ऑफ फॉरएवर देन आफ्टर. And I always thought that I'll be a mother who is involved, because I want my child to be of a certain education, exposure and all those things. But then as an entrepreneur, I was like, yeah, maybe I have to get my daughter to be raised by my mother or my mother-in-law, because you have to do those compromises. Business कौन raise करेगा? And we are a couple founder. तो मतलब both ही है. मतलब अगर business नहीं चलेगा तो घर भी नहीं चलेगा. तो it's just
another level of things that you have to go through. And it just takes, I think, but मेरे को आपसे एक चीज़ पूछनी थी, because you've been in this for 5 years, that if you are not doing something that you love every day, which is like riding, maybe not every day for you, but for example every month, what is that allows you to keep going? For me, my funda in life is never say die. So I believe it's hope यार. It's as simple as that. एक word बोलो. वैसे founder में तो फिर we can talk one paragraph also. But अगर दिल से पूछो तो it's hope कि you will be invited to there is a ride called Whiteout, which is like -30 degrees in Spiti. That's my like. मैं हर साल मेरे को इनवाइट आता है फ्रॉम अ ब्रांड, अ रिनाउंड ब्रांड, ठीक है. एंड एवरी ईयर आई लिटरली प्रेस नो, सेइंग दैट प्रतीक वत्स, तुझे अगले साल इतनी अच्छी टीम बनानी है, ठीक है. पैसे तो चलो इतनी बड़ी बात नहीं है, बट इतनी अच्छी टीम बनानी है कि तू 15 दिन तक फोन बंद कर दे, और जब वापस आता हो कंपनी चल रही है. इसके ऊपर एक और लाइन है जो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में बोली गई है, जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों के सपने साकार करते हैं, और वही हो रहा है. एग्जैक्टली. और होता यही है कि मतलब जैसे भाई को पूरा ट्रैवलिंग का ही शौक था, और इनको पता है कि भाई ट्रैवलर्स को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अपनी इच्छाएं मार के सब कुछ करके अपना प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी चीजें कर रहे हैं. And what is that for you? What did you compromise on a music? नहीं एक्चुअली में गाने तो देखो, आपको ही पता है, सबको पता है कि सब सुनते हैं, सबको अलग अलग टेस्टिंग में गाने ही बजते होंगे. अरे आप कॉल करो मेरे को कभी भी, पीछे से आपको आवाज ना आ रही हो तो मेरे को बताना, पूरा पीछे से नॉइज चलता ही रहता है. पर एक्चुअली में जो मेरी प्रॉब्लम थी, मेरी तो प्रॉब्लम शुरू में तो डिफरेंट थी. शुरू में तो मेरे को लग रहा था पैसा बनेगा. टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑडियो फाइल नहीं, मैं मास मार्केट वाला आदमी, ठीक है, मेरे को सब चलता है. पर जैसे ऐसे मतलब 5-6 साल हो गए, मतलब मैंने जब रियलाइज करा कि यार ये चीज़ रियल में प्रॉब्लम है. बहुत सारे लोगों को कई लोग ऐसे जो 15-15, 18 लाख रुपए के स्पीकर्स बाय कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मेरे को समझ में आता है कि यार उनके पास कैपेसिटी है, वो ये कर सकते हैं. पर एक्चुअली में जितने भी, अगर आप म्यूजिक लवर्स भी देखोगे ना, तो म्यूजिक लवर्स भी ऐसे है कि उनको पता है, वो अगर किसी भी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी भी ब्रांड का, अगर उसने उस ब्रांड का स्पीकर या हेडफोन या ईयरफोन लिया, उसको पता है वो 5-6 महीने बाद वो फेंक देगा, और वो लिटरली फेंक देता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि डिस्टॉर्शन आनी शुरू होती है. जैसी डिस्टॉर्शन आती है उसके वो काम का नहीं रहता, वो खत्म करता है, वो हटा देता है, वो दूसरा वही, बेशक वही ब्रांड ले, बेशक सब कुछ वही ले, वो दोबारा बाय कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि 3 से 6 महीने की वैलिडिटी है इसकी, उसके बाद खत्म है ये. बेशक वो चलता रहे 1 साल 1.5 साल, पर उसका डिस्टॉर्शन आता है, आउटपुट कम हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि एक ऑडियो फाइल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और ऑडियो फाइल और इंडिया की मार्केट भी ऐसी है कि मतलब उनको पता ही है कि यार इतना पैसा कोई खर्चा करना नहीं चाहता, ठीक है. और अल्टीमेटली सारे के सारे हम फाउंडर्स हैं या जो भी है, मैं हूँ पंडित, ठीक है, पर दिमाग वो बनिए वाला ही चलता है कि भाई इतना पैसा क्यों खर्चा करना, राइट. मतलब अगर मेरे पास इतना पैसा होगा कि मतलब मैं डिफेंडर ले लूं, पर मैं ट्राई यही करूंगा कि टाटा की कोई गाड़ी, थार से ही काम चल जाए. And Niranjay, what was it that you compromised to reach here, and that sometimes still gives you like a pinch of pain? जो तीनों भाइयों ने बोला वो तो है ही, आपने भी बोला वो तो सबका है. There's a parental guilt and all that. So I will not dwell upon it. The biggest thing that I've sacrificed is a very comfortable, cozy, top tier career. I had to, because I was in a government job that a lot of people actually dream to get into. I had to resign from it because the government rules do not allow you to do a business. It's office of private profit and all that. So I had to resign from a job that I had always dreamt of to solve this problem. I have compromised on a great lifestyle. Again, the parental guilt. My wife became pregnant after 1 year of when we launched Parkmate, now Blip. And the first 1.5 years were comparatively comfortable, unlike most of the startups. But the real struggle began after this. So now when I go, I leave early in the morning when my child is sleeping. I come back at around 8:30 or 9 o'clock and my child is again slept. So I always tell my wife, please उसे थोड़ी देर और जगा के रखो कि यार कम से कम 10 मिनट तो उसके बाद बैठ लो. And Sundays, Saturdays for a startup who's into parking business, that's our peak time. So Saturday, Sunday is definitely not off. So that's where we are always on our toes. So yeah, we've all more or less compromised
on the similar things. तो I still रहता ही remember है। when I left my job, came to मकान से Noida, कपड़े में- हाँ and we settled in Noida after leaving my job. और उससे पहले मैं और कुछ करियर में गया ही नहीं, मैं कॉलेज के इमीडिएटली बाद सेलेक्ट हो गया था. आई ज्वाइंड अकेडमी इन 2011, देन इनटू एक्टिव सर्विस. तो 2021 सितंबर आई रिजाइन. अक्टूबर वाज द फर्स्ट मंथ व्हेन आई डिड नॉट गेट माय सैलरी. और वो जो हिट होता है ना आपको कि अरे सैलरी नहीं है. कॉर्पस का सीवी नहीं बच पाता है वो. मतलब somebody in Shark Tank US, मतलब आई इंस्टाग्राम के रील पे ही देखा था मैंने फ्रैंकली, क्योंकि दिस होल सेटअप इज अबाउट फ्रैंकनेस. तो उसने बोला कि जो नौकरी करते हैं उसको एक ड्रग मिलता है हर फर्स्ट तारीख को मंथ को. अब मुझे रियलाइज होता है कि वो ड्रग सही था यार. मतलब मिलता तो है कम से कम, यहाँ तो है ना. पता ही नहीं है। मतलब दिवाली तो बनती थी. एंड द फनी पार्ट इज ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स ये सब डिस्कस होता है कि 9 to 5 जॉब्स बेकार है, ये है वो है. ट्रस्ट मी, जहाँ वो खराब बहुत नहीं बढ़िया है यार. हाँ. हम भी लोगों से 9 to 5 करवा रहे हैं. तो इनफैक्ट हम नाउ से 24 आवर जॉब. और उनकी सैलरी पहले क्रेडिट होती है और फिर देखा जाता है कितना बचा है और अपनी कैसे मैनेज. हाँ, मतलब अपनी पूरी लेनी है या अपनी आधी करके छोड़नी है. मतलब अभी बिजनेस टैक्स में पूरा ही जमा कराना होगा. बहुत कम बहुत लोग हैं जिनके क्रेडिट स्कोर मेंटेन रहा होगा. नहीं नहीं, टैक्स पूरा ही जमा. अपने पास पूरा पैसा आए ना है, टीडीएस तो पूरा जाना पूरा जाना है. So amazing. Then I think I had expected and I hoped for it to be. I'll also take this कि जो lifestyle वाली बात आप कर रहे थे ना उस पे. So I was working in Germany. I had the dream life. I was doing 8 to 4 and like मैं 2 बजे भी निकल जाऊँ तो मुझे कोई नहीं पूछता था, कोई जवाबदारी नहीं थी. साल में 10 कंट्रियां मैं ट्रैवल करती थी. इटली और ऑस्ट्रिया तो ऐसे थे जैसे गाजियाबाद और इंदिरापुर. 63 countries. एग्जैक्टली. तो इतना ट्रैवल होता था ना. I think there was only 2 things that I liked. One was mental peace and the other was travel. And now while I am building for mental peace, but then having those kind of conversations with people who are going through struggles, and then India में आपको समझाना भाई mental well-being कितनी important है, founders को समझाना कि भाई founders अपनी mental health के लिए भी prioritize करो. And easier said than done, because जब ज़रूरत आती है तो हम खुद as a mental health founder भी अपनी mental health की दान कर सकते हैं. So वो सारा compromise करके we had moved to India, and that was like I think 1 साल India move होने के बाद मैं I think 10 बार बीमार पड़ी थी, because that kind of stress my body was not able to take. 8 years later I was moving to India, the temperatures had gone crazy, the summer, family, relatives, everything, and my parents were like, are you sure? And people had started making those stories कि I moved back because I failed or I was fired, and they were not understanding कोई बाहर से क्यों move करता है startup मैं के वही लिए. पूछना, you got fired. I was like कि sorry to hear that. No, I didn't. I moved because I जर्मनी से wanted. इंडिया कौन आता है? Exactly. अब सोचो आप अगर ये सवाल पूछते तो रिलेटिव्स कैसे पूछते होंगे, घर वाले. और आपका काम फैमिली वालों को समझ आता है तो वो बोलते हैं कि आप 35 लाख के बाद 3.5. मेरा तो काम ही मेरी फैमिली को नहीं समझ आता. वो कहते तू करती क्या, यू श्योर दिस इज समथिंग, और आर यू जस्ट बिल्डिंग लाइक प्रोजेक्ट बना रहे हो. और प्रोजेक्ट अभी भी सुनने को मिलता है कभी कभी, प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है. नाउ आई विल इंट्रोड्यूस वंशिका. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. वी स्टार्टेड बिकॉज देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ डिले, but Vanshika, as I mentioned, that she is the founder of Fingerprint Labs, giving a new face and style to marketing and content creation and a lot more. And we started with the first question only, that what is it that you had to compromise for you to reach here today? And that pain, that compromise, that still pains on some nights of the week. The biggest sacrifice. Biggest sacrifice that you can share with us. I think it was definitely being uncomfortable with the fact that I'm not going to get a lovely paycheck hitting my account every first of the month. The drug, the psychedelic. The psychedelic drug. And I think more than that, I think what's even more uncomfortable is that
when you start your own journey, you walk into the unknown. You're like, I have this vision, but I don't know if it'll work or not. And I think a lot of entrepreneurs go through these rounds of pivots and iterations. I was mentally prepared for it because I come from a business family, but I don't think it prepares you enough just knowing and seeing someone else do it. Till you walk the path yourself and you've done the struggles and you've succeeded in a couple of things yourself, that's really when the reality hits. And yeah, I mean, it sucked not to get a paycheck the first month, like the first of the month amount credited in your account. But I think from all of that, one of the biggest learnings that I've had is patience is the way in this game. If you're not patient, this is not for you. From your talk, ma'am, I assume that you're from B2B, right? B2C. B2C, but we are hardcore D2C. आपको ये तो पता चल जाता है कि मुझे उनसे 10,000 रुपए लेने हैं. मेरा Shopify 15 लाख रुपए दिखाता है और फिर जब मैं अकाउंट में चेक करता हूँ तो उसका 50% भी नहीं आता है. Snehal, आपका क्या रहा है? How many times have you almost given up in this journey? And I want to know what was the most recent give up? मतलब कि यार अब क्या करें आगे, क्या हो रहा है, नहीं करना है. यार गिव अप ना, क्योंकि आई हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर सिंस माय स्कूल डेज. अब वो फीलिंग नहीं आती frankly, क्योंकि पता है कि दिस टू शैल पास. Got it. Right, and पहले of course during my first startup there were many days जब बैंक में पैसे नहीं, 4,000 रुपए, 3,000 रुपए पड़े मेरे पास. वही वो मैं I think I was planning a trip somewhere. कोई दोस्त हम लोग कहीं जा रहे थे, वीजा के लिए उन्होंने मांगा कि कंपनी का स्टेटमेंट चाहिए. दे दो. मैंने कहा भाई पक्का रिजेक्ट हो जाएगा. 4,000 रुपए कंपनी के पैसे तो तुम बोलो कि सैलरीड है या कुछ है, ऐसे कुछ करके ही करना होगा. But I think after going through a lot of such cycles, you kind of develop a thick skin and you learn to manage it. That's the only way. मेरे को फ्रैंकली तो एक बार भी नहीं आया गिव अप का. मुझे ये था कि साम दाम दंड भेद, दिस इज इट, दिस हैज टू बी डन बाय एनी मींस पॉसिबल. तो अभी तक एक बार पे गिव अप वाला नहीं है. हाँ, समटाइम्स इट हैज happened that it gets overwhelming for you. Exactly. You do get this, you introspect and think यार इतना बुरा तो नहीं सोचा था, यहाँ तक आ जाएंगे ये तो नहीं सोचा था. And sometimes you cannot talk to your wife about it because then she will also panic. And then you have to calm down your panic to deal with her panic before you deal with your. Most of the time it does happen that your wife actually calms you down, but unnecessarily why would you want her to be in the same state in which you are? Yes. और आप घर वालों से नहीं बोल सकते. वो पहले आपको 10 सुनाएंगे, 5 और बातें सुनाएंगे, उसके बाद मदद होगी नहीं होगी ये भी कुछ पक्का नहीं है, और बात और फैलेगी. लाइक आई सेड, घर में इज्जत वो बिल्कुल ही डाइल्यूट हो जाएगी. बट यस, हाँ, गिव अप करना, I think we have all turned thick-skinned at a point of time. But the point is, like, my father is an entrepreneur. He's done it for 35 years. He's gone through himself. आप सोचो 90s के टाइम में, 1990 में my dad did a crore worth of revenue in his first year as a B2B business, and he was all in the newspapers and everything, and the next year his company shut down. And then he worked with somebody for like 5-7 years, learned the difficult parts of entrepreneurship, then like started his own thing, and now he's been doing that for 20 years. So sometimes I do want to go to him as an entrepreneur to entrepreneur, and I was like, पापा अपना dad वाला part बाहर छोड़ कर आना, क्योंकि मुझे dad की advice नहीं चाहिए. But then he can't leave that emotion out. He will give me the advice, he will give me the suggestions, he will help me through it. But then what also happens is he's like, रिया अगर इतना डिफिकल्ट हो रहा है, स्पेशली डैड टू डॉटर, राइट, कि इतना डिफिकल्ट हो रहा है तो यार तू माई डैड इज इनटू फ्लेक्सिबल लैमिनेट्स, तो बोलते हैं तू पेपर का बिजनेस कर ले, आज के टाइम में सबसे प्रॉफिटेबल है. तो बोला पापा मुझे इतना बोरिंग बिजनेस नहीं करना है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मुझे टेक पे काम करना है, मुझे कुछ इनोवेट करना है, मुझे आई नो प्रॉफिट. बट देन आई एम लाइक, इज इनोवेशन एंड पैशन मोर इम्पोर्टेंट और इज प्रॉफिट? एंड देन आई एम लाइक, यार पापा ने तो कर लिया ना, अब अपनी बेटी है. एंड भव्य मेरे हस्बैंड को फाउंडर, आई थिंक 10 दिन के उसके होने पे ट्रैवल कर रहे थे यूएस एक प्रोग्राम के लिए, नॉन नेगोशिएबल था. मुझे 3 महीने बाद ट्रैवल करना था, पर मेरी डॉटर का वीज़ा नहीं आया था, तो मैं और वो दोनों नहीं जा पाए. सो ही हैड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द फादरहुड, आई हैड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द करियर बिट फॉर द फर्स्ट फ्यू टाइम्स for us to be able to do that. And then ऐसा लग रहा था यार पापा ने कैसे करा होगा मैनेज. No, the funny part, I am a single parental boy,
I lost my father quite early in the age. I had always envisioned myself to be the best father possible कि मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करूँगा. God said challenge accepted. But the thing is, I still try to make as much time as possible, even if I get even 10 minutes extra with him. Exactly. और ये जो आपको क्वेश्चन था ना, सॉरी, कि मतलब कैसे, मतलब वो आपको सबको ही लगता है, मतलब एक्चुअली में ना, ये मैंने बहुत सारे जो अर्ली स्टेज फाउंडर्स होते हैं, जो मतलब जिन्होंने पैसा उठाया हो, मतलब उठाने चाह ही रहे होते हैं, वो हर बार ही बोलते हैं कि भैया मैं सोच रहा हूँ यार कंपनी बंद कर दूँ, मतलब कुछ हो नहीं रहा, कुछ ऐसा है कुछ वैसा है, किसी इन्वेस्टर ने मेरे से इतनी एडवाइजरी मांग ली, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एडवाइजरी तो ठीक है, एडवाइजरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. वो एडवाइजरी द न्यू स्कैम. हाँ, अरे 1990 वो 19 ज्ञान देने के पैसे. वो ज्ञान भी नहीं आएगा. 1990 स्कैम के बाद ये आना चाहिए. ठीक है, It's a serious problem, by the हाँ, way. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. मतलब हर कोई कि भाई मेरे को एडवाइजरी चाहिए. अब ये मतलब जो अर्ली स्टेज फाउंडर होता है उसको ये लगता है कि यार चल दे देता हूँ. 1-1.5% में क्या जाएगा? 1-1.5% नहीं मांगते, गलत. 4-5 5% 10 भी मांग लेते कहीं. ठीक है, तो उस टाइम पे ना आपको ये रियलाइज होता है कि यार अब इसको क्या मोटिवेशन दो. मतलब अब भाई बड़े भाई की तरह आया तो आपको मोटिवेशन देनी पड़ेगी. मैं उसको दो चीजें बोलता हूँ. मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं उसमें दो चीजें बोलता हूँ. शाहरुख खान की एक मूवी थी जो बहुत कम चली है, हैप्पी न्यू ईयर. ठीक है, उसमें वो बोलते हैं ना कि किस्मत साली बहुत कुत्ती चीज है, कभी भी पलट जाती है. और एक्चुअली में होता भी यही है. एंटरप्रेन्योरशिप वाली जर्नी में अगर आप देखोगे तो आपको ये लगता है कि यार आज कुछ सब खराब चल रहा है, कभी ना कभी कुछ अच्छा हो जाएगा. और एक मूवी है जो मतलब मेरे को नहीं लगता कि किसी ने देखी भी होगी, शाहरुख खान की मूवी है कभी हाँ कभी ना. ठीक है, उसमें शाहरुख खान का मतलब पूरा का पूरा ये है कि उसको हर बार लगता है कि नहीं अब ये मतलब हो जाएगी, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी. हर बार ही बना हो जाता है. ठीक है, एक्चुअली में एंटरप्रेन्योर की लाइफ ऐसी चलती है. आपको हर दिन ऐसा होता है कि यार एक बार ही किसी इन्वेस्टर को पिच कर रहे हो, उसने मना कर दिया. ठीक है, पर आपके पास कोई बड़ा कॉर्पोरेट ऑर्डर आ गया, आप बोलोगे चलो ठीक है अब अगला दिन के ऊपर फोकस करते हैं. और एक्चुअली में होता यही है. तो आपने जो क्वेश्चन पूछा ना वो बहुत ज्यादा वैसा है कि यार आपको कभी लगता है कि नहीं करना है, और मतलब वो आपके दिमाग में वो घूमता रहता है कि यार छोड़ दूं या फिर मतलब क्या इस आइडिया में वो छोटा सा एक ऑर्डर आता है और फिर उन्हें वो छोड़ दूं एकदम, अरे मजा ही आ गया इसीलिए तो बनाया था. अब प्लस एड ऑन इसमें एक और चीज भी आती है ना, हमारे जैसे जितने D2C फाउंडर्स हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? कंज्यूमर का वर्ड ऑफ माउथ. अगर उसने बोल दिया कि भाई तुमने ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया, स्टोरी डाल दी, मतलब हमारे साथ तो बहुत बड़े बड़े चीजें हुई. टी सीरीज ने हमारे प्रोडक्ट को मतलब एज अ प्रॉप यूज कर लिया बिना पैसे दिए. हमारे पास पैसे ही नहीं होता ना. श्रुति हसन ने हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया, जसलीन रॉयल ने हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया. तो अब जब ये सारी चीज होगी तो हमें लगता है कि यार भाई सही तो चल रहा है, मतलब कुछ करना ऐसा भी पड़ेगा, बन जाएगा. कुछ ना कुछ हो जाएगा इसमें. और वो एक्चुअली में होता भी है. वो मतलब उस टाइम पे नहीं होगा, पर 1-2 दिन बाद हो जाएगा, 3 दिन बाद हो जाएगा, 4 दिन बाद और हो उस जाएगा. होप वो नेगेटिव डे की जर्नी आगे चल जाती है. That's the whole point, that there's this ideology, na, that persistence breaks resistance. Absolutely. That is the whole point. You have to बिल्कुल. be persistent in this journey. वो हमेशा डिपेंडेंसी रहेगी. एंड आई थिंक करण आपसे स्टार्ट करते हैं इस बारे कि what was that one experience when you went somewhere and something major fuck up happened? कोई एक स्टोरी, कोई एक मोमेंट, कोई एक डिसीजन जो आपकी टीम ने ऐसा ले लिया जो मतलब कॉमन सेंस के पार होता है. कि कई बार लगता है इसे मैंने को-फाउंडर कैसे पकड़ लिया. किसी इवेंट में गए, कुछ गए और मतलब वो फक्ड अप हो गया. ऐसा बहुत बार ही होता है. मतलब पर आप उसको रियलाइज कैसे करते हो, आपको दिमाग में सोच के रखना पड़ता है. अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. एक हमारी कॉल थी एक इन्वेस्टर के साथ, और वो इन्वेस्टर ने हमें मतलब इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गया था. उसने आईसी कॉल पे कॉल थी हमारी. अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पे मेरी नानी की डेथ हो गई और मेरे को अपने मतलब गांव जाना पड़ा यूपी के अंदर. और अब मैं उस कॉल को डिक्लाइन भी नहीं कर सकता. मैंने ट्राई करने का सोचा कि मतलब आईसी कॉल 1-2 दिन बाद कर लेते हैं, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उस टाइम पे. तो उससे बोला नहीं, आईसी कॉल तो इसी दिन होगी इन्वेस्टर ने. तो मैंने कहा ठीक है. तो कॉल के बीच में अब मतलब एक्चुअली में फाउंडर मतलब एज अ 3 कंपनी में को फाउंडर्स है. अन्य पूरा का पूरा प्रोडक्शन देखता है, मैं इन्वेस्टर रिलेशन वगैरह सारा मैं ही देखता हूँ, ज्ञान मैं करता हूँ, ज्ञान मैं देता हूँ इन्वेस्टर्स को, और बस मतलब वो मेरा काम है. तो उस वाली कॉल के ऊपर अनन्या ने और मतलब बाकी लोगों ने, हम लोगों ने, उसने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जिसके पास अनन्या के पास आंसर नहीं था उसका. अब वहां पे मेरे को ये चीज लग रही थी कि यार यहाँ पे अगर मैं होता, मतलब मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, मैं कार ड्राइव करते करते कॉल पे हूँ हाईवे पे, और वो बार बार नेटवर्क कट रहा है. और वो मेरे लिए ऐसा मोमेंट था कि मैंने कहा यार यहाँ पे अगर मैं अगर स्टेबल नेटवर्क में होता, कुछ होता तो इन्वेस्टमेंट हो जाती. पर वो जो हुआ कि यार नेटवर्क ही नहीं आ रहा है,
तो फिर आपका गेम ही खत्म। तो एक्चुअली में आप अपना साइकोलॉजिकल जो घूम रहे हो कि भाई किसी की डेथ हुई है, कुछ हुआ है, XYZ हुआ है, कुछ भी हुआ है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब वो इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा डाल रहा है, उसको लेना देना नहीं है। I'm just amazed by the experiences and it's good to know कि यार सबकी वही जर्नी है and I think audience में से अब हम थोड़ी देर के लिए एक बार कुछ questions पूछते थे अगर किसी को है and then otherwise I have my list of questions. Does anybody have here to say anything? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को मतलब इसमें मतलब थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। और एक अभी नई नई चीज शुरू हुई है ASMR वीडियोस, वो उससे भी रिलैक्स फील होने लगता है। मतलब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती कि वो ऐसा क्यों है। वहाँ पे कुछ एक फनी बात आई, चाहे वो एक अर्ली स्टेज फाउंडर हो या चाहे को $1 बिलियन कंपनी फाउंडर हो, स्टार्टिंग फ्रॉम मी टू दीपेंद्र गोयल, सब पे प्रेशर सेम है, बस सोर्स ऑफ प्रेशर अलग है। हाँ, प्रेशर सब पे सेम है। पैसे में और आपकी डिपेंडेंसी आई थिंक आपकी कंपनी में आज भी उतनी रहेगी और तब भी उतनी रहेगी। प्रॉब्लम्स चेंज हो जाती हैं, आज प्रॉफिट नहीं आ रहा है, आज रेवेन्यू नहीं आ रहा है और कल प्रॉफिट नहीं आ रहा है या प्रॉफिट कम हो गया है। प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए, फिर और ज्यादा आना चाहिए, तो द प्रॉब्लम्स विल नेवर एंड। Can I add a quick anecdote to Yes. your question? I think all of you over here have a set of co-founders, right? No one here is solo, right? Okay, so I'm the only solo founder here. I had a co-founder for a little bit and then realized that it was not a good match. Soon enough, we realized and we parted ways. And what can go wrong will go wrong. So I had to travel for my cousin's wedding to US for 5 weeks. Well, I'd gone to the wedding and then I traveled a little bit. So for 5 weeks, obviously it's just me running the business and I'm the face of TFL. So everybody reaches out to me on my WhatsApp, on my phone, on my email. So obviously there is such a big time difference that there are only certain hours that overlap, right? Like रात को बहुत late रात को या बहुत जल्दी सुबह. And the thing was that there was a lot of times when I questioned, like, should I just taken 5 weeks off and been like, screw it, business बाद में हो जाएगा. And I realized that it's me that's stopping myself. Like, as an entrepreneur, if I've decided to take on a task of running this business, I take full ownership and I have to live up to what I'm expected to do. Because I'm not available, the client should not be stuck, right? There were projects that were in the middle. We did try and wrap up what we could before we left, but there were obviously things happening, and I feel like I took that responsibility and onus on myself that I have to be available. I should respond to my team. If I see something going wrong, I should be part and parcel of, the team stuff. But I think one of the things that definitely went wrong was, from my side, was not communicating well to clients. And I wish I had done that in a more structured way. But this is the first time I've actually taken a 5-week break where I was completely in a different time zone. So I was also unprepared. Whatever was going on, I had told them that I will be traveling, but I don't like giving out too much information. So I said, I'm traveling, I'll be available, but limited. So, but then, when something blows up, like something's not right, सीधा founder को text जाता है, this thing is not looking good, आप इसको ठीक करो. मैं बोला, okay, मैं try करती हूँ. But through that process, I learned how important communicating is, and not everybody's communication style is the same. As entrepreneurs, we have to deal with so many different kinds of people, so many different types of attitudes, beliefs, values, upbringing. And I think just being aware that not everybody has the same story or background as you, and just understanding where they come from and making sure that you as an entrepreneur are doing your best to service whatever you need to do and what is in their best interest. I think finding that happy balance is not always easy as entrepreneurs, because like all of you must be talking to vendors, to tech people, to design people. You're talking to so many different people, and having not been born and brought up in India, and I was born and brought up in Dubai, started in the US, then moved here, I've realized how beautiful the diversity is in India, and there's so much opportunity for us entrepreneurs to leverage the diversity that we have, right? Like, I have people in my team who are working from Pune, from, not big towns. They're aspiring to come to big towns, but the amount of dedication, hard work, and the amount of hours and passion that they put into everything is just super beautiful. So I think if there's one thing that I learned through this experience was that
communication is very important. How you communicate, what you communicate, and where you communicate is equally important. And I think as an entrepreneur, taking responsibility for the ups, the downs, and the sideways is all unfortunately falling on us. And if we don't own up to our responsibility and the title that we have chosen for ourselves, then this is not probably the path for you. So When did you start? 2.5 years back. Yeah, 2.5 years Good ago. correlation. Yeah. And I think that was the worst time. And I'm glad I went for therapy. I think every entrepreneur should go for therapy. And I think that is, being in a mental health slump is the worst thing ever. Days of not getting out of bed is not fun. Answer is no. My body has so far not given me any such sign. Yes, mentally I have been in certain spaces. It can where- also be like sleepless nights for 3 days. Sleepless nights, I still sleep for 4.5 hours only. Only. Yeah. I can't sleep for more than that. फाउंडर्स स्लीप आई थिंक हम एक कोई तरीका होना चाहिए बैलेंस शीट और इन सब में स्लीप आवर्स मॉनिटर करने का फाउंडर्स के, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Yeah, अभी तक absolutely. नहीं दिया है नहीं, but तो देयर विल कम अ टाइम. But mentally, it has Mentally given will come to so your many physical. signs. Mentally it will Will come to your eventually physical. come to. I think I need the psychedelics. Yes. So I think balance it a bit more. Yes, sleep is our biggest USP. So I should definitely. touch something somewhere would be supposed to go. I have कुछ तो problem. Snail. Yeah, so I have this thing कि मैं 5 घंटे ज़्यादा सो ही नहीं पाता. And since last 20 years, like my engineering days, it's been like that. But वो 5 घंटे में बहुत अच्छा सोता हूँ. हाँ, we- उसमें बाहर आग लग जाए, बिल्डिंग गिर जाए, मैं सोता रहूँगा. कितनी बारी मैंने बचपन में भी, बचपन से जब मैं सोता था, मैं 2-4 बारी तो घर वालों को बाहर बंद करके सो चुका हूँ. They had to devise mechanism. The sleep gets a little more compromised once you have a small kid. आपकी नींद अपने आप थोड़ी कच्ची हो जाती है उस टाइम पे. हाँ, नहीं, मेरे साथ अभी ऐसा नहीं हुआ बिकॉज एनी कोई डिड. बट यस, हेल्थ वाइज बिकॉज इतना कभी कभी इतना हेक्टिक हो जाता है, ट्रैवल भी कर रहे हैं, घर का भी कुछ देखना है, मीटिंग से भी जाना है, ऑफिस भी जा रहे हो, एंड देन यू कभी कभी वो 5 घंटे की भी नींद नहीं हो पाती. फॉर एग्जाम्पल जस्ट परसों की बात लो, आई वॉज इन मुंबई, आई हैड अ 9:30 AM मीटिंग इन गुड़गांव, टुक 6 AM फ्लाइट विदाउट स्लीपिंग ऑफ कोर्स बिकॉज हो जाता तो कैसे हाँ तो नहीं हो पाता. 6 AM फ्लाइट, लैंडेड एट 8:30, थोड़ा लेट हो गई फ्लाइट, 9:30 बजे ऑफिस पहुंच के, इट वाज अ 4-6 hour मीटिंग, Meeting. right, and pitching because we are discussing something. And then उनको एयरपोर्ट छोड़ने गए, and my co-founder is with me. जैसे ही उनको उतारा, I was dead, मैं सो गया गाड़ी में बैठ के पूरा आधा घंटा जब तक घर आया हूँ. और जब घर पहुंच गए, घर आ गई थी, और मतलब our body also in a way just till the time we dropped him, full energy, 100 to 0 goes like this. but facade was on कि भाई स्नेहिल बहुत ऑलमोस्ट स्नेहिल को मैसेज करो, क्रेजी टाइम्स पे मैसेजेस आते हैं. 6 बजे भी आएगा सुबह, रात को 1 बजे भी रिप्लाई आएगा. There's always that particular time इस पे पक्का रिप्लाई आएगा. पक्का रिप्लाई. बिकॉज मैंने एक चीज अच्छी कर रखी है, मैंने फोन 2 कर, दिस इज द एक्सटर्नल वर्ल्ड फोन, इसको मैं कभी कभी उठाता हूँ. दिस इज माई ओनली टीम एंटर, so that is my way of Good idea. some mental peace and segregation, because वो तो फिर नहीं तो इतना मेंटल वो हो जाता है ना, बस कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा. हाँ, कीप रिंगिंग, इसलिए मैं तो फोन ही हटा दिया ना टेबल पे से. For me, One health sign that happened over the past few years where your body was like यार बस कर. मेरा तो काफ़ी है. I had a cardiac arrest and I have 2 stents in my heart. I became from pre-diabetic to serious diabetic because of obviously I will not say it's 100% because of the business, but yeah, Everything plays a role. yeah, it plays a role, and yeah, it's like business that. to family, family to business.
वो टेंशन ही रहती है, सैलरी कब दोगे, ये कब दोगे, वो कब दोगे एंड ऑल दैट. तो दैट केम इनटू बीइंग. सो मेरा तो काफी इट टुक. I also gained 17 kgs of weight. I was light enough. I used to do motocross. If you see my मतलब videos and all, तो अच्छा स्मार्ट होता था मैं, मतलब ऐसा नहीं था. बाल भी मेरे थोड़े बहुत काले थे, अभी तो पूरे ही सफेद हो गए. आज सुबह हेयर कलर लगा के आना था पॉडकास्ट के लिए. मैंने लगाया. मैं आपको मैंने इसलिए दिया कि वो पार्लर ने भी जो नाई ने भी बोला कि सर इसको महीने में एक बार लगा. सॉल्ट एंड पेपर लुक. तो आई थिंक वो धोनी की जगह गलती से वो बना फाउंडर्स के लिए ही था. नहीं, इन्वेस्टर को ट्रस्ट और आएगा ना कि भाई बुजुर्ग आदमी है. ये बाल ऐसे ही नहीं सफेद हुए. और कितने से और कोई एडवाइजर वो सफेद बाल का ज्यादा इक्विटी नहीं मांगेगा. मतलब अगर आपके मतलब आई विल जस्ट कंक्लूड माय दिस थिंग. आई टुक माय हेल्थ वेरी लाइटली एंड आई रिग्रेट दैट. एंड उसमें कोई मतलब कुछ छुपाने वाली बात नहीं है. एंड प्लीज मतलब जो भी ये सुन रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन, भाई मेरे जैसे मत करना, क्योंकि सच में बहुत प्रॉब्लम होती है. उस तन डलने में बहुत दिमाग खराब होता है. तो मैं यही बोलूंगा कि यार लाइफ थोड़ा सा पहली बात तो लाइटली लेना. चले नहीं चले तो ठीक है, और मगर यार हेल्थ मत खराब करना. मैंने कर ली, मैंने मतलब कर चुका हूं मैं, तो उसको मत करना बस. अगर 1% भी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मैं 1% ही बोल रहा हूं, तो उस स्टार्टअप को कल ही बंद कर देना. मेरा हमेशा ही ऐसा होता था, कल से वॉक जाऊंगा, परसों से सिगरेट छोड़ दूंगा, यार वो तो डील ही नहीं हुई, चल 2 पैक पीते हैं. मुझे मतलब मैं कोई शर्म नहीं कर रहा हूँ बात करने में, ठीक है, मगर वो फिर इतना टोल हो जाता रहा है कि वो फैमिली भी खराब होती है, उसमें हेल्थ भी खराब होती है, बहुत कुछ हो जाता है. मतलब बहुत कुछ हो जाता है. मैं आपको कैमरे में भी नहीं शेयर कर पा रहा हूँ. तो मेरे साथ तो हुआ भाई अनफॉर्चुनेटली. तो पहला तो स्ट्रोक का ही है, और दूसरा मेरे को बाद में पता चला कि भाई ये सब बकवास भी होती है. जनवरी के अंदर मेरे को आफ्टर स्ट्रोक एंजाइटी हुई, विच इज कि भाई जब स्ट्रोक हो जाता है तो आपको ये लगता है कि भाई अब अगर कुछ भी कर रहा हूँ मैं तो उसमें भी हो सकता है कुछ भी. right? तो मतलब एक्चुअली में मेरे को जनवरी में जाना था, 4-5 जनवरी को अंदर ही मेरे को जाना था हरियाणा के सीएम से मिलने. शार्क टैंक के फाउंडर्स को मतलब सबको बोला था कि भाई वहां जाना है, 4-5 सजेशन मांगेंगे वो हरियाणा के सीएम. और हम लोगों ने बोला चलो ठीक है चलते हैं. मैं पानीपत पहुंचा हूँ. पानीपत में मेरे को लगा भाई हालत खराब हो रही है, मेरा बीपी शूट हो रहा है. और वहीं पे मतलब मेरे को फाउंडर्स ने बोला भाई नहीं, चेक कराओ पहले, वो बात का देखा जाएगा. भगे वहां पे, बीपी चेक हुआ, सब कुछ नॉर्मल. यहाँ पे आए तो पता चला भाई एंजाइटी है. तो डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया एक काम करो, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, आप मतलब समझो. अब मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया हूँ, वहां पे सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है, वो 2-3 दिन तक ना वही पूछ रहे थे कि रूट कॉज क्या है, रूट कॉज. वो पीछे पूरा पूछते रहेंगे कि भाई पहले क्या रहा है ये आपकी लाइफ. मैं कहा भाई तू मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर, वो सब छोड़ दे. फिर उसके बाद मैंने मेडिटेशन करना है, उसी की वजह से स्टार्ट करा. हाँ, बुक पढ़ना काफी ज्यादा हेल्प करता है. You need to get this psychedelics. हाँ एब्सोल्युटली. मैंने हमारी 2 सबसे बड़ी यूएसपी, मैं सेल्स नहीं कर रही हूँ, पर एंजाइटी और स्लीप को सॉल्व करता है ये प्रोडक्ट, और 95% एफिकेसी है. और अगर हेल्प नहीं किया तो मैं आपको 10,000 रुपए. नहीं रिया, मैं आप सही बता रहा हूँ, आपकी टीम में से इसे रिकॉर्ड पे कहते हैं मेरा चैलेंज चला रखा है. दिस इज अ चैलेंज. इफ यू डोंट स्लीप और इफ यू कांट सॉल्व फॉर एंजाइटी, आई विल पे यू 10,000. नहीं, मैंने आपकी जो टीम मेंबर आए थे हमारे ऑफिस में, तो मैंने उसको सामने से बोला था, मैं कहा भाई एंजाइटी को ये मतलब रिमूव करता है, क्या करता है. कह रहे कि आपको नींद आएगी. तो मैंने कहा ठीक, ट्राई करते हैं. तो वो चीज थी. बाकी मतलब मेरे को तो सिंपल है कि यार मतलब फिर उसके बाद मतलब वो कि मेडिटेशन, वो मेरे को साइकेट्रिस्ट और डरा रहा है. वो कह रहा भाई आपको मेडिटेशन देंगे, आपको मेडिकल पे डाल देंगे कि भाई आपको दवाई खानी पड़ेगी, एंटी डिप्रेसेंट और ये वो फलान. मैं कहा भाई ये बकवास नहीं करनी. फिर मैं मेडिटेशन की तरफ गया, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा, और उससे थोड़ा सा रिकवर होता है. मेडिटेशन से रिकवर होता है. इट्स जस्ट दैट मेडिटेशन सबके लिए आसान नहीं होती, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है अंदर से. क्योंकि मतलब आपको पूरा ध्यान एक जगह पे करना है. तो उसके लिए मेरे को बुक सबसे ज्यादा बेटर लगती है कि बुक पढ़ो, बुक में आपका ध्यान वही रहेगा. और इंग्लिश की बुक पढ़ो, क्योंकि हिंदी में तो पढ़ ही लोगे, इंग्लिश में आपका ध्यान वही रहेगा, वरना आप मतलब भूल जाओगे. ठीक है. नाउ वील टेक टू द लास्ट क्वेश्चन अंटिल. इसके 2 पार्ट्स हैं. एक, एज अ फाउंडर आप अगर ऑनेस्टली शेयर कर पाओ तो क्या पर्सनल वेल्थ बनाई है.
ठीक है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई कितने भी साल हो जाते हैं, वेल्थ क्वेश्चन 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 रहती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि एक दो बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, इट कुड बी हायरिंग, इट कुड बी इन्वेस्टर, इट कुड बी हेल्थ, एनीथिंग, वहीं से स्टार्ट करते हैं। वन मिस्टेक एंड वेल्थ, पर्सनल वेल्थ क्या बना पाए हो, क्या नहीं बना पाए हो। पर्सनल वेल्थ टू बी ऑनेस्ट इन मॉनेटरी टर्म्स कुछ भी नहीं है, ठीक है, इन ट्रू सेंस। और अगर कम्युनिटी वाइज पूछेंगे कि भाई अगर अगला स्टार्टअप स्टार्ट करना है आपको, तो आप कितना पैसा उठा सकते हो, वो मेरे पास मतलब $1 मिलियन में, कि मतलब अगर मैं कुछ भी आइडिया अगर थ्रो करता हूँ तो मेरे पास इतने कनेक्ट्स हैं कि मेरे को पता है कि मेरे को किस इन्वेस्टर को पिच करना है, और वो उसके पे रेडी भी होगा, क्योंकि मैंने अपनी मतलब जो पूरा सर्कल है जो भी है मैंने उतना वो कर लिया है। मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करती हूँ। फाइनेंशियली व्हाट इज योर रिस्क मनी, कितना पैसा खर्च करते हुए ऐसा लगता है कि यार इतना तो मैं अफोर्ड कर ही लेता हूँ। अब मैं सैलरी नहीं पूछूंगी, बट वो फाइनेंशियल रिस्क मनी क्या है। मगर इसमें आपको एक क्वेश्चन ये भी ऐड करना है कि ईमानदारी से बताओ कि सैलरी लेते हो कि नहीं लेते हो, या चलो वी विल नॉट टॉक अबाउट द नंबर्स, बट वी शुड नो जो सैलरी आप बोल रहे हो 50% लेते हो, 20% लेते हो। एंड फॉर ऑडियंस, हम लोग को ये कोई नहीं है कि कुछ हमें इनकम टैक्स कुछ नहीं है, इसलिए कि बताने में शर्म आएगी, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। कहीं डिसअपॉइंटिंग ना हो जाए। नहीं तो एक्चुअली में मैंने अभी 5 सितंबर को अपनी मैम से बात करी थी कि टीचर्स डे पे, तो वहां पे मेरा दुखड़ा निकल गया पूरा। मैंने कहा भाई वो बंदा इतना कमा रहा है, 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, मैं यहाँ पे, और वो बंदा मेरे को इंस्पायर कर रहा है, कह रहा भाई तू तो बढ़िया कर रहा है, मैं भी जॉब छोड़ दूं। मैंने कहा भाई तेरी 2.5-3 लाख रुपए की नौकरी है, तू कहाँ छोड़ने के चक्कर में पड़ रहा है। और एक्चुअली में फैक्ट है कि मतलब आप जब सामने से देखते हो ना, तो आपको ये कभी कभी डर लगता है कि यार इससे बड़े तो नौकरी कर लेते, तो वो चीज है, वो मतलब एक्चुअली में दिमाग में चलता है। पर आप जब सोचो ना कि चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बात तो मैं करोड़ों वाले लोगों से कर रहा हूँ ना, कि जो बंदा बोल रहा है 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ मेरे अकाउंट में पड़ा, ये सारी चीजें अब पेपर में तो ऐसा आएगा इस होप में। और कोई मिस्टेक, द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। मेरी लाइफ में सबसे बड़ी तो ये है कि हेल्थ पे ध्यान बिल्कुल ना देना, ठीक है। और हेल्थ पे ध्यान देना के ना, वो पहले एक साइकोलॉजिकल था कि मेरे को ये लगता कि मतलब जब मैंने कॉलेज से ही पास आउट तो नहीं हुआ, ड्रॉप आउट हुआ, तो जब मैं कॉलेज से बाहर आया था तो मेरे को लगा यार मैं पतला पतला सा था, बिल्कुल दुबला पतला सा, मेरे को कोई इन्वेस्टर भाव नहीं देता। मैं कहा यार मैं दुबला पतला सा हूँ इसलिए मेरे को कोई भाव नहीं देता, मैं मोटा हो जाता हूँ। मोटे होने के बाद ना मतलब लोग सोचेंगे बड़ा है, मतलब 25-26 साल का समझेंगे, और वो चीज वर्क करी उस वक्त पे वो वर्क करी, पर उसके रिपरकशंस अलग हो गए, वो अलग बात है, बट उस चीज से वो वर्क करी। और जो दूसरी चीज मेरे को लगता है वो ये था कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जिनको मैंने मना करा, जो मेरे को बाद में रियलाइज होता है कि यार इसको ले लेता मैं, या फिर उसको ना लेने के मेरे पीछे रीजन है। मतलब मैंने बहुत सारे सिंगर्स को ड्रॉप आउट करा, मतलब उन्होंने बोला कि यार नहीं भाई हम पे इतना पैसा डाल रहे हैं और मेरे को इतनी एडवाइजरी भी चाहिए होगी थोड़ी सी, मतलब मैंने बोला ये एडवाइजरी का तो वो हो गया कि चल ठीक है तेरा डिस्काउंटेड पे मान लेंगे। पर मैं वो सोचता हूँ कि यार नहीं यार ये मतलब पुराना सिंगर है या नया सिंगर है, नहीं लेना चाहिए इसको। और ये सारी चीजें जो है ना, जो मतलब शुरू में एक सीरीज है, वेब सीरीज, आपने शायद से वो देखी होगी और देखनी चाहिए सारे के सारे फाउंडर्स को, सिलिकॉन वैली। उसमें वो सबसे बढ़िया चीज वो पता है क्या होती है कि वो बंदा 10 मिलियन का ऑफर ठुकरा देता है और $1 बिलियन की कंपनी बनाता है और बाद में जीरो हो जाती है। एक्चुअली में यही सच्चाई होती है कि आप सोचते हो कि यार 10 मिलियन का ऑफर ले लेते, कुछ तो लाइफ सेटल होती है उस टाइम पे, 4-5 साल तो सेटल होते उस टाइम पे, एक्विजिशन का ऑफर मिल जाता, सबसे बढ़िया हो जाता। उस टाइम पे वो आपको रियलाइज होता है कि यार नहीं कर लेनी चाहिए थी, और वो होता है, मेरे साथ भी हुआ था ये। प्रतीक, biggest mistake and money, financial wealth. Yeah, my financial wealth is that I have a Royal Enfield Himalayan 411, which is I think now more 1 lakh rupees, and I have a Google Pro phone which I think now will be resold for 35,000 rupees. That's the only thing I have. Rent के मकान पे रहता हूँ मैं पूना में. That's the final. अगर स्टार्टअप की वैल्यूएशन की बात करें तो ऐसा अच्छा लगेगा, मगर वो उससे आटा नहीं आता है। स्टार्टअप वैल्यूएशन इफ यू कैन शेयर। आटा नहीं आता, बहुत कम है और डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो बेसिकली वो है, मतलब द लास्ट व्हाट वी वाज रेटेड, माय ऑडिटेड वैल्यूएशन इज राइट नाउ 20 CR, जो लास्ट राउंड उठाया था मैंने, तो वो ज्यादा नहीं है मेरे को ऐसा लगता है। इसमें एक चीज मैं एक और ऐड ऑन करूं, अभी ना एक बहुत ज्यादा पोस्ट वायरल हो गया था उधर से ही रेफरेंस है ये कि उस फाउंडर की सैलरी 2 लाख है और वो इतना का धंधा बना रहा है।
मैं मतलब वो पता है मेरे दिमाग में ना वो एक हीरो है उसका, आपने वो पॉडकास्ट सुना होगा और वो बहुत ज्यादा वायरल होता है, इनके स्ट्रगल हमारी मतलब वो शुरुआत होती है, हाँ। यही सच्चाई है। 2 लाख रुपए भाई, 2 लाख रुपए सैलरी और 2 लाख रुपए pocket में। मैंने कहा भाई ऐसे कब होता है, मतलब 5 नंबर 6 नंबर के डिजिट में कब आता है? एक शार्क टैंक में स्माइल आया था, हाँ ठीक है, वो 4 मेरे को- लाख। वो इतना मेरे को सपने में आता है वो। हाँ बट आई थिंक मोर देन दैट वो भी आपको समझ आता है कि इसका कोई देखो एंड अंत नहीं नहीं है। है। आप पहले 25 लाख की गाड़ी ले लो, फिर आपको लगेगा 50 की लेनी है, 50 की फिर Rolls Royce लेनी है। करोड़ की लेनी है, फिर ऐसे तो जाते रहो 15 करोड़ तक ना, फिर खत्म। बट फिर सड़कें भी नहीं है ना, तो देयर इज नो एंड। इसीलिए आई एम सेइंग कि वो बचपन के जो कुछ चीजें होती है ना, आपकी जो कोर memories में create हो जाती है core। बकेट लिस्ट बोल लो या वो बोल लो, तो वो सब सॉलिड है। बट डू यू थिंक कि ये चीज मैटर करती है कि मतलब किसी अर्ली स्टेज फाउंडर के लिए मैं पूछ रहा हूँ, मतलब क्योंकि मैं भी अभी अपने आप को अर्ली स्टेज समझता हूँ जी, मैं भी। कि तो कि मतलब आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि यार आप ये जब चीज सोच लो कि यार नहीं मैं हो गया हूँ सेटल, तो वो चीज होनी नहीं चाहिए फाउंडर्स के दिमाग में कि यार नहीं हमेशा ऐसा अपग्रेड नहीं है, करना बल्कि चाहिए। मैं तो उल्टा सोचता हूँ कि आप अबंडेंस में ज्यादा बेहतर काम करते हो वर्सेस कंस्ट्रेंट्स में। Yes. अगर आप अबंडेंस, तो आपकी ना एनी आधी एंजाइटी ऑफ लाइफ वो खत्म हो जाती है। हो गई ना। अब आप बिजनेस को बाकी आधी एंजाइटी भी हाँ, घर अगर allocate करो। if home is taken care, हाँ, yes. Then you think I'll build the company with by making sure that my staff is being taken care of. बिल्कुल। While you yourself are not in the right shape. This is not अबंडेंस में आप हमेशा बेहतर काम कर पाते हो। So I agree with it. एंड व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? The second question was mistake, the biggest mistake. हाँ, बिगेस्ट मिस्टेक मैंने पहले स्टार्टअप में ये की थी कि अपने लिए कोई वेल्थ नहीं बनाई। एंड दिस इज व्हाट आई आल्सो नाउ सजेस्ट एवरी फाउंडर कि Absolutely. एसएचए में एक एस्टेट प्लानिंग क्लॉज रखो हमेशा। मैं कोई इन्वेस्टर मना नहीं करता कि इतना परसेंट ऑफ माय वेस्टेड इक्विटी आई कैन सेल विदाउट एनी रोको रोका, एंड अपने आप को जितनी ठीक सैलरी दे सकते डोंट रोमांटिसाइज करना। ठीक है, Correct. मेरे कुछ दोस्त अभी भी सीरीज बी में भी कर रहे हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ मत करो। एंड क्योंकि होता क्या है ना, जब आपके पास बैंक में कंपनी में पैसा है, आप ऑलरेडी इतना बर्न कर रहे हो, महीने के 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बर्न ना वोंट मैटर। Won't matter. VCs activate. VCs agree करते हैं। Yeah. बट इफ दैट फेल्स, तो वो आपकी जान आपके खाएंगे। पास भी कुछ नहीं बचा, आपको जबरदस्ती जाके नौकरी करनी। और रेपुटेशन डाउन होती है वो अलग। रेपुटेशन तो देखो, नहीं मेरे को नहीं लगता कि फेलियर इन स्टार्टअप वर्ल्ड हाँ। नहीं रेपुटेशन डाउन करता पर है, रेपुटेशन मैं बट आपका खुद का मोरल एंड आपकी खुद आपकी हाँ। आपकी हिम्मत ही नहीं होगी। हाँ, वही। लाइफ में मैं ये मानता हूँ कि 10 स्टार्टअप करने पड़ते हैं। आपकी किस्मत अच्छी हुई, रितेश अग्रवाल जैसी हुई तो पहला ही स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाएगा। खराब हुई तो 5वां, छठा, बहुत खराब हुई तो 10वां। बट कैन यू बी ऑन दैट पाथ कि आप वो फेलियर और फिर भी आप 10 स्टार्टअप कर पाओ? उतना मेंटल सेट है कि नहीं है, सबसे बड़ी बात वो है। मेंटल सेट देखो कुछ हद तक फाइनेंशियल तो उससे ही होता है। स्टेबिलिटी से आता है। Yes, तो बिल्कुल सही डोंट, है। मतलब देखो ऑफ कोर्स अगर पैसा है ही नहीं और नहीं है तो ले ही नहीं सकते। हाँ। बट जब ले सकते हो तो ले लो यार, 2 लाख रुपए महीने है, फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी बॉटम लाइन पे और टॉप लाइन पे। Absolutely. जैसे ही तुम पैसा कमाने लोगे तो ठीक हो जाएगा, राइट? नहीं, कैश फ्लो से नहीं ले सकते तो जब भी अगला राउंड कर रहे हो थोड़ा सा सेकेंडरी कर लो। हाँ। फाउंड इन्वेस्टर्स, देयर आर इनफ इन्वेस्टर्स हु एक्सक्लूसिवली डू Secondary. कि यार उनको क्योंकि समझ आता है कि यार फाउंडर का अगर अबंडेंस माइंडसेट होगा ना तो बेटर आउटपुट मिलेगा, राइट? तो दिस इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ वेरी बिग मिस्टेक दैट a lot of young founders and sometimes even experienced founders do कि they romanticize struggle कि नहीं मैं तो सिर्फ 50,000 रुपए की सैलरी लूंगा। ले ले यार 1 लाख रुपए, ले ले 2 लाख रुपए। ऑलरेडी अगर तू 25 लाख रुपए का महीने का बर्न कर रहा है तो लाख कुछ रुपए नहीं extra फर्क मैटर पड़ता। नहीं करेंगे उस वक्त पे। बट अगर फेल हो जाता है तो कंपनी तो गई, तेरा भी खराब। अब यू विल हैव, एंड फाउंडर्स डू नॉट मेक गुड एम्प्लॉइज। एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। वो आपको खुद अच्छा लगता है और ना ही वो उसको भी जो वो सामने वाला बंदा हायर नहीं करता। मतलब मैंने ये चीज भी बहुत देखी कि जो हाँ, फाउंडर्स होते हैं वो हायर नहीं होते हैं। क्योंकि यार उन्हें भी पता है ना कि यार ये बात सुनेगा बात सुनेगा नहीं। अब अनलेस आपको EIR रोल के लिए हायर करना हो, फाउंडर्स डू नॉट मेक गुड एम्प्लॉय। दैट इज अ ट्रू फैक्ट। ये मैंने देखा है। मतलब बहुत सारे मैंने फाउंडर्स जो एक्स फाउंडर्स है उनको जॉब के लिए करवाया तो वो बंदे मना कर देते, कहते नहीं कर रहे हो, वो जॉब नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। तो वो अपना थोड़ा सा सॉर्ट कर लेना चाहिए। एंड हमें ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर ये बोलेंगे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। इन्वेस्टर कभी मना नहीं करेगा। एक्चुअली सही salary। इन्वेस्टर होगा तो अग्री कर जाएगा, बिकॉज हमारे साथ जब हमने लास्ट राउंड किया था तो उसमें यही चीज हुई थी कि सॉर्ट ही और कितना है जो चाहिए ही चाहिए उतना उससे ले थोड़ा लो। एक्स्ट्रा ले लो। हाँ, क्योंकि उन्नीस सेव भी तो करके रखो यार आगे। क्योंकि
I want your mental bandwidth only for work, Exactly. not for anything ये else. ये चीज एक इन्वेस्टर ने मेरे को और बोली थी कि जितना तुम्हें पैसा चाहिए ना उतना उससे थोड़ा ज्यादा ही निकाल लो, क्योंकि अगर तुमने उससे ज्यादा नहीं निकाला या उतना नहीं निकाला, परसेंटेज बताओ ना, वो छोड़ दो। बताओ, मैं 1 नवंबर में एप्लीकेशन डालूंगा अपने अरे 25-30 हजार रुपए छोड़ दो अब। उसका 100% भी कितना ही होगा। तो एक्चुअली में ही सेड कि यार ये अगर तुम करते हो ना तो इसके बाद का जो होता है कि यार तुम कहीं और ट्राई नहीं मारोगे, कहीं और मतलब कि यार गिग वर्क कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो सब एफर्ट नहीं मारोगे। नहीं निकाल सकते, बोनस लिंक्ड कर लो कि हाँ, यार कि इतना रेवेन्यू कर लिया तो हो गया, 50%, 100%, 200% एक्स्ट्रा, हाँ, whatever. But then find a way to have some money in your own bank account also, so you can work with abundance mindset. एब्सोल्युटली। अब let's come to Dhananjay and Vanshika. Your point of view also. So यार पर्सनल एसेट्स, सो लास्ट फंड रेज जब किया था तो सेकेंडरी तो नहीं हुआ था, सेकेंडरी के जरिए इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिया था। तो देयर वाज अ डे जब मेरे बैंक में 1 करोड़ था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्योंकि मुझे ये नहीं पता था असली में 1 करोड़ मेरे बैंक में जो रहने वाला आएगा वो कब आएगा, फिर ट्रांसफर कर दिया। तो वो इंटरेस्ट ही कमा लेते, वो देना क्योंकि वो उसी मंथ में कन्वर्ट क्लोज करनी थी फंड रेज, तो वो जीरोस देख के ना बड़ी खुशी हुई थी। एंड इस होप में कि दिस बैलेंस विल स्टे इन माय बैंक अकाउंट फॉर सम टाइम एंड विल बी माय वेल्थ। बट पर्सनल वेल्थ कुछ नहीं है, जर्मनी से कुछ पैसे सेव करे थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे की भी सारी सेविंग्स न्यूफनी और ब्रांड बिल्ड करने में लग गए थे। सो सिर्फ पोर्टफोलियो है SIPs की 5-8 जो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं है, रेंटेड घर पे रहते हैं। और अभी तो कभी कभी स्ट्रगल ऐसी भी हो जाती है कि मतलब फंड रेस के लिए डैड से थोड़ा सा लेना पड़ जाता है क्योंकि बफर मनी क्रिएट करना पड़ जाता है। तो दैट वाज द मनी एस्पेक्ट ऑफ इट। द मिस्टेक, आई हैव डन फ्यू बैड हायर्स टू द एक्सटेंट कि उन्होंने मतलब कल्चर इन्वेस्टर रिलेशंस ही इम्पैक्ट कर दिए एंड फॉर लाइक अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, टू द एक्सटेंट व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट I was judged of how less I was working, and then I was not a visionary CEO. But then it was not understandable कि भाई एक प्रेग्नेंट लेडी क्या गो थ्रू करती है, ऑफिस आके 8-4 घंटे बैठना क्योंकि मेरी टीम मेहनत कर रही है तो मुझे भी आना है, मैं पैर सीधे करके लेट नहीं सकती। दैट वॉज ऑल्सो अ वेरी बिग डील एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो हायरिंग मेरी बहुत मिस्टेक रही है जिसने कल्चर, और फिर ऐसे जब लोग जाते हैं तो बाकी के लिए रेपरकशंस क्रिएट हो जाते हैं कि यार ये क्यों गया, क्या गड़बड़ हो गई, क्यों ऐसा हुआ। सो ऑल those things, hiring is very important. It's almost like getting somebody into your family, somebody into your household, exposing somebody to your kid. You don't get strangers to do that. You have to know the person. हाँ मतलब तो फिर मतलब बहुत गड़बड़ हो जाती है, मतलब नहीं जमता है। तो Hiring can actually spoil the entire culture, everything, मतलब जाते हुए भी जहर छोड़ के जाएंगे, वैसा होता है, जाते हुए भी जहर छोड़ के जा और उसको सकते हैं। निकालते निकालते में महीनों लग गए थे। 1 करोड़ रुपए तक तो आप अपना बिजनेस बना लोगे, मैं हमेशा ही बोलता हूँ 1-2 करोड़ भी बना सकते हो, मतलब इट डिपेंड्स ऑन विच नेचर ऑफ बिजनेस है। भाई 2 करोड़ के ऊपर मैं गारंटी बता सकता हूँ ह्यूमन रिसोर्स के बिना दुनिया में कोई कंपनी नहीं चल सकती। एंड आई टेक लाइक इन्वेस्टर मनी, मतलब किसी का आई हैव मनी, मतलब मनी तो होता है ना सबके पास थोड़ा थोड़ा। तो अब मैं जब SIP में डालती हूँ मुझे कितना रिस्क लगता है कि यार भाई SIP में डालते हुए नुकसान ना हो जाए, बस नीचे ना चला जाए, 10 का 10 ही रिटर्न आ जाए पर 9 नहीं होना चाहिए। तो और मैं 1000 की बात कर रही थी, लाख की बात नहीं कर रही थी एज अ फाउंडर। वही चीज़ फाउंडर इन्वेस्टर में नहीं होती कि भाई, so our first acquisition offer was 1x return to our angel investors after 4 years. 1x means 10 का लेके 10 वापस कर दो 4 साल बाद। भाई किसी भी ग्रोथ, थोड़ी तो ग्रोथ किसी को भी हो जाती है। We said no to Lenskart at that point of time. So for me, returns and money, I don't think so I can live like by taking somebody's money down. So for me, my company portfolio, हम उसको वो threshold मानते हैं कि as long as I can give returns or the money back as it is, it's okay. Otherwise that बट पता है ये सोचना नहीं चाहिए, दिस इज अ वेरी गड़बड़ मेंटालिटी भी है उस फाउंडर्स। देखो उन्होंने तुम्हारे पे कोई एहसान नहीं किया था, उन्होंने रिस्की इन्वेस्टमेंट की थी व्हिच दे न्यू कैन प्रिंसिपल भी यूज हो सकता है। एमडी में तो डाला नहीं था, अगर ये पैसा बनता तो उनको भी फायदा होता, तुम्हें है ना। तो आइडियली ऐसे डिसीजन ना इस बेसिस पे नहीं लेने चाहिए। ऐसा वन प्रिंसिपल तो ऑपरेट कर रहे हो ना, इन्वेस्टमेंट हाँ, as long as principle is getting about a fiduciary responsibility कि नहीं, किसी ऐसे- इस thought से चलना चाहिए कि किसी का पैसा डूबने ना दे। I have done 15 angel investments, उसमें 6 जीरो हो चुकी हैं।
वो एंजल इन्वेस्टमेंट होती है ऐसी है। जो 10-15 की हाँ है ना, तो अब वही तो बैलेंस आउट वो बैलेंस आउट वही होगा। हाँ तो आपको ना अपने ऊपर नहीं वो स्ट्रेस लेना है कभी भी कि यार इन्वेस्टर का पैसा मैं बना के दूंगा। आपको अपनी कंपनी के लिए काम करना है। आपको लग रहा है कि दिस इज द राइट थिंग फॉर माय कंपनी फॉर फ्यूचर, और मैं इसको बड़ा ब्रांड बना सकता हूँ। And don't ideally we should not, and of course I have also been a party to those mistakes. पर अपने को आइडियली सोचना नहीं चाहिए इस तरीके से कि यार उसके पैसे उसने यार आपने उसने ना आपने Idea fix pizza money आइडिया में उसने अपना सरप्लस डाला है एंड काइंड ऑफ लाइक अ बेट लिया है कि शायद 10x हो जाए या फिर शायद 0 हो जाए। और या एक्चुअली में पता है एक चीज और भी होती है इसमें, बहुत मतलब ये आपने इस सिचुएशन फेस करी है नहीं करी मेरे को आइडिया नहीं है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनको अगर आप बोलो कि मैं आपको 1x या 2x पे एग्जिट दे रहा हूँ, वो बोलेंगे कि भाई राइट ऑफ कर दूंगा मैं, पर 2x पे एग्जिट That happened ठीक with है, me. ये Happened with actually me. होता है। प्लीज आपने एक्टिविटी में डाला था। I'll tell you a funny part. This exactly same thing happened with this just a few months ago. We had an acquisition offer. It was okay. I won't say it was exactly. very generous. I won't say that it was a very bad offer. We had an acquisition offer recently. So I spoke to my VC that this acquisition offer has happened, and they are giving you certain X. It was not a very respectable X, but it was still a doable X. So he literally said this to me, Dhananjay, I'll be happy to write off this money and still go to sleep at peace rather than getting this disrespectable amount as return. I'm an institutional investor. तो ये बोल देते ना कर दे यार। थैंक यू, मैं ले लूंगा एक और। But फिलहाल that acquisition we only did, right? हां ऑफ कोर्स Absolutely. The Lenskart one was not good for us, the company or the investors. So it was 3 no's. So I wanted to add one thing. अभी जो फाउंडर्स का जो लेटेस्ट जेनजी फाउंडर्स जो हैं, जो मैंने देखा है कि फर्स्ट मनी इन वाला जो कॉन्सेप्ट आ गया है कि आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल 1 महीने में 1 लाख रुपए महीना कर रहा है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट है तो वो 1 लाख रुपए सैलरी भी ले रहा है, नहीं लाइक कि हाँ बढ़ाएंगे इसको धीरे धीरे, नेक्स्ट राउंड में बढ़ाएंगे, 5 राउंड में बढ़ाएंगे। वेयर रिया का मैं जो ऐड ऑन करूंगा, अगर आपका कॉन्शियस आपकी जो एक ईमानदारी होता है, एक ईमान कहते हैं, अगर वो सही है, आपको लगता है कि नहीं यार आई tried my level best to make this happen, but unfortunately I was not able to do it. So you should not be conscious about it, because I like what sir said that it's मेरे को कभी क्वीज में किताब दिया नहीं है। so basically जो they are putting their pizza money on you, it's a disposable income for them. जीरो होना ही है, they know that risk। और क्योंकि एक्चुअली में ना जब मैं I want to ask you this question. Do you regret not taking the acquisition offer now? Not the Lenskart one. Absolutely, that's the answer. Because it was then it's for the right reason। it was negative for all. It doesn't matter. Some founders try to prioritize personal. I am saying I will do what is right for company, not for investor, not for myself. अगर कंपनी के लिए बढ़िया है तो अगर आज मुझे एग्जिट लेना पड़ेगा, if I have to take an exit today by putting myself a little bit at loss, कि यार now I am not needed for the company, let's say, and the company is good enough to grow, I am happy to do so as long as the company and the vision is sitting right. I can take a side seat there. So that's where my personal money basically, मेरे को money मिले ना secondary मिले ना मिले वो चलेगा, as long as company सही scale पे सही growth पे चल रही है। 2018-19 के टाइम पे आई वॉज पार्ट ऑफ VC फर्म, तो वहां पे हमारा काम सिर्फ यही होता था। हम इसकी उम्र क्या है यार? कब से स्टार्ट किया है इसने? नहीं 25, अभी मैं 26 का हो गया। तो 20 से मतलब बचपन में स्टार्ट कर दिया? नहीं 17 फंडिंग उठाना? नहीं 17-18 साल की एज में, मतलब मैं जब बीटेक कर रहा था तो उसके बाद सेकंड ईयर में मेरे को समझ में आ गया, मैं कहा भाई ये बकचोदी है, ठीक है। उसके बाद मैंने मतलब ये रितेश अग्रवाल जो है उनका मैंने बहुत सुना था। मैं कहा 17 साल का बंदा रायगढ़ जैसी जगह से वहां से पैसा उठा के लाया है, और उसके चक्कर में भाई साहब मतलब इसका नाम भी बन गया, ओयो भी बना लिया, सब बना लिया। तो भाई मेरे को, और मैं दिल्ली में बैठ के ना बना पाऊँ तो मेरे ऊपर थू है, तो मैंने उसके चक्कर में मतलब ये इस साइड पे जाना शुरू कर दिया। पर बाकी मतलब मेरे नहीं, पर मेरे जो फादर है वो एंटरप्रेन्योर ही थे, ठीक है, पर आई लॉस्ट हिम इन व्हेन आई वाज 9। तो उसके चक्कर में मतलब मेरे दिमाग में ये था कि भाई ये सब करना नहीं है, एंजाइटी हो जाती है, इसमें बकवास है। और मेरा भाई जो है वो UPSC 5 बार निकाल के बैठा हुआ है, तो वो भी अलग से प्रेशर है कि भाई तेरा दिमाग प्रेशर अच्छा तो सब में है कि तूने भाई अच्छा करा है, तू मतलब दिमाग वाला है, तू UPSC निकाल लेगा। मैं कहा ठीक है भाई चलो ठीक है। तो उसी के चक्कर में मतलब मैं गया था, और वहां पे मैं सारे इन्वेस्टर्स को, उस टाइम पे दिल्ली का आपको पता ही होगा एंजल नेटवर्क बहुत छोटा था, पर थे ही नहीं,
दिल्ली में उस टाइम पे एंजल इन्वेस्टर्स ही नहीं थे, 17-18 से पहले एंजल इन्वेस्टर 30 ही थे हाँ पूरे इंडिया हाँ, और मतलब उस टाइम पे हम लोग एक्सप्लेन करते थे इन्वेस्टर्स को कि भाई, और उस टाइम पे ये वजीर एक्स और ये जेपे करके एक कंपनी थी, तो जेपे बंद हो गई थी। तो जेपे का सीन ये था कि उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा लेके और वो कंपनी खत्म हो गई थी। तो उस टाइम पे हम लोग इन्वेस्टर्स को ये बोलते थे कि भैया आप ऐसा पैसा डालो इन्वेस्टमेंट में जो आपके लिए जीरो हो जाए, आप उसको क्रिप्टो की तरह हैंडल करो कि भाई मैंने पैसा डाल दिया, बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा ना बने। तो एक्चुअली में इन्वेस्टर्स का सबका ये होता है, और मैं सामने से इन्वेस्टर को भी बोलता हूँ कि भाई आप इस कंपनी में उतना पैसा डालो जो आपको अगर जीरो भी हो जाए ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने अपने दोस्तों का भी जिनका पैसा लगवाया है उनको ये बोलता हूँ भाई तेरा पैसा जीरो भी हो सकता है या ट्रिपल भी हो सकता है या 10x भी हो सकता है। हाँ, प्रे फॉर हाँ, 100। वो एक्चुअली में ये होता ही है कि मतलब जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं आपको ना इन्वेस्टर्स का दुख नहीं मनाना होता कि भाई वो अरे यार वो हो गया, वो ठीक है कि यार हाँ उसका जीरो हो गया, वो आपको मन में लगता है, पर वो दिमाग में ये सेट होता है कि यार नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए। Yes. Okay, what was the question again? So the question was, what is your personal wealth and what's the one mistake? And with that, we'll then end and take a photo with everybody in the guest. Okay, I make enough to pay my bills and still save some money to have some security for my child and for my wife. My wife is was also working with me. She compromised her career to support me in my business. So no, she is not taking care only of home. She is taking care of home also, but she was also my team CXO. She was the one who was responsible for building culture. Nice. She's looking HR as well as finance. She comes from business background. She has more business acumen than I do. So she was also part of this. So both of us were making together enough to pay our bills and still save some money at the end of the day. We are comfortable. And as Snail Bhai said, most of my bucket list got fulfilled in the service only. जो savings थी वो majorly business में चली गई, but now we are at a stage where the business is doing fairly well. We get ourselves decent salaries, or the VCs have been kind to us also to allow us to withdraw some money. Yeah, and the second question was? One mistake. Yeah, one mistake that I really regret is an investment was about to come. We were anticipating that investment, everything was right. We took a project of a certain value larger than the incoming money, thinking कि इसके बाद capex सब solve हो जाएगा. The money never came. It sent us back by around an year. We had to literally struggle and ask money to anyone and everyone possible in my family, in my close network, fellow founders. I believe I've called Snail Bhai also. I approached every person that I knew to give me money to get out of the situation. And most founders I still remember, I'll name Sandeep Dinodia. He's a founder himself now from Simple AI. So I called him on an evening, and on evening, he Snail Bhai, 5 lakh rupees ki zarurat urgent. He did not ask me why I need it, what I needed it for. He said account number wage. And most of the fellow founders, and I want to quote it on record. My most of the family members did not help, but the ecosystem did. And the only reason why we could sail through, and I'm really, really thankful to all of the entire ecosystem, even to those who could not help, and everybody has a reason. If somebody would ask me a certain amount, I might not have it, and I might not be comfortable with the person. So nothing wrong against anybody, but the ecosystem stood up and helped me to get through that time. And that was the mistake that I made. And I urge all the founders who are listening to this, पैसा आने के बाद ही उसके expenses को plan कर लो, expense कर देना, उससे पहले commit किसी को कुछ मत करना. Let the money hit the account. हैंडशेक के बाद बैंक में आने में 100 things can. अरे मैं तो बता रहा हूँ, मेरे तो सही में ऐसा हुआ था सीन कि एक इन्वेस्टर ने मेरे को 1 करोड़ का कमिटमेंट दे दिया. हमें अच्छा लगा, हमने टर्म शीट साइन कर ली, बोला सिंगल कैपिटल एंट्री होगी. 28 लोग कैपिटल पे भर दिए. अब आपने इन्वेंट्री भर लिया, आपने एम्प्लॉयज हायर कर लिया, हम मना भी नहीं कर सकते, आपको वो बर्न करना पड़ेगा. और हमारा तो वो वाला हाल है कि आपको मतलब जलेगा ही वो, क्योंकि लकड़ी स्पीकर्स है, तो वो उसमें आप क्या करोगे. मेरे शार्क टैंक में भी मेरे साथ यही हुआ. अभी रिसेंटली शार्क टैंक में व्हाट आर, सो दे प्रॉमिस्ड मी 50 लाख रुपीस, दे नेवर गिव इट. एंड इट वाज लाइक कि आपका EBITDA इज
मतलब सिर्फ 3 पॉइंट का इबेटा में फर्क था. एंड दे सेड कि इसके वजह से भी आई वेंट टू चाइना टू बाय माय अपैरल्स, माय टेक्निकल अपैरल्स. वहां पर क्या कहते हैं 7-8 हज़ार रुपए के सैंपल्स बनवा लिए. उनको पूरे सारे वादे कराया हूं मैं कि आपसे ये 1000 पीस ले लूंगा, आपसे 2000 पीस कर लूंगा. पूरा R&D कराया, ठीक है, सो दैट कि पैसा आएगा, ठीक है. एंड दे जस्ट सिंपली सेड कि नो. Who committed you the money? रितेश अग्रवाल एंड नमिता, ठीक है. तो वी आर वेरी सैड. मतलब सीरियसली, मतलब फिर कमिटी मत करो ना. बट इट्स नॉट अबाउट शार्क टैंक एंड ऑल, ऐसा नहीं है. बट पॉइंट इज कि एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट इन्वेस्टर्स डिस्क्रिप्शन. उसका मन कर रहा है, मन नहीं है करने का, वो नहीं करेगा. यू कैन नॉट यू से. बट यस, दिस वाज द मिस्टेक दैट यू हैव आल्सो मेड, दैट बोथ ऑफ अस हैव मेड. मैंने ऐसे मतलब लोगों को देखा है कि जो कमिट करके फॉर्म फाइल हो गया, पैसरी वैसा ही सब फाइल हो गया, उसके बाद एक छोटी सी चीज थी कि उस सिंगर को लेके आना था, वो नहीं आया, तो उसकी वजह से पैसा डिक्लाइन कर दिया. It happens. It's a regular thing that happens to most of the मतलब ये चीज मैंने that is a mistake that I urge everybody to never make. पहले पैसा अकाउंट में हिट कर जाने दो, उसके बाद ही कुछ उसका एक्सपेंस का जो भी प्रोजेक्ट लेना है, कुछ भी लेना है, प्लान तब भी मत मानो. करने के बाद भी फैक्टर अकाउंट CS अकाउंट में आ जाएगा. जब तक CS फॉर्मेलिटीज नहीं बढ़ जाए तब तक मत प्लान करना. नॉट जस्ट दैट. अरे ROC के बाद भी CS फॉर्मेलिटीज. बाय द वे, CS फॉर दोज हु डोंट नो, कंडीशन सब्सिक्वेंट. पैसा आने के बाद भी कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, जब तक वो मीट नहीं होंगी यू कैन नॉट एक्चुअली यूज दैट मनी. तो जब तक CS फॉर्मेलिटीज भी आपकी ना पूरे, उसमें पासवर्ड जितना भी कुछ है, ROC फाइलिंग सब हो जाता है, उसमें इंक्लूडेड ही होता है. And now we'll take it to Vanshika and then we'll wrap this up. And if there is any questions from the guests, then we'll take that. Vanshika has been really patient with us. Yes. I enjoy learning, and sometimes you learn the best when you're the most silent. it's absorption time. always learning. Yes, I'm in absorption mode right now. I have made enough money to buy the things my parents said not to buy, or did not let me buy, or did not buy. Bachpan ke dreams. MacBook. My father, when I was in college, and I asked him, I'm like, I get a student discount. सस्ता भी है US में, मैं ले लूँ, मेरे को student discount में मिल रहा है. He's like, क्यों चाहिए? You're a marketing person. Why do you need a MacBook? मेरे को चाहिए, मेरे friends के पास है. That is one thing that I bought. I bought some very overpriced jewelry, which I'm very ashamed of buying. But I'd asked my father to buy it for me, and he said no, and I went and I bought it on my 21st birthday or something. I went and I bought that. Next thing, my mom was always like, अभी मत diamonds में खर्चो, अभी मत ये करना. I went and I did that also. जो भी parents ने मना किया ना, मैंने वो सारी चीजें की. And what will be the one mistake? And I think one of the biggest mistakes that we make as entrepreneurs is not leaving work at work. What happens at work stays at work. Your family is a separate entity that deserves your love, time, attention. And if you clash the two together, you're going to realize that you're doing something. Sooner or later. So I think what happens at work, just stress, everybody is going through the same shit. And I love the title of this event, but everyone is going through the same shit. Leave your shit at office and come home and genuinely dedicate the time, the energy, the love to your family that they require. फाउंडर्स की बात नहीं कर रहे हो. फाउंडर्स का दिमाग नहीं चलता है. आप चाहे कुछ की बीवी भी ऑफिस में ही होती हैं. उनको ऑफिस और ऑफिस भी घर है. बच्चे भी ऑफिस में ही होते हैं. मेरे भी बच्चा ऑफिस में. We have a play pod in office specially for kids. We allow others also to bring their kids. ये सर कहने की बात है. हम लोगों को मतलब जब हम लोग टूर पे जाते हैं कि यार मतलब चलो पूरा ऑफिस पूरा जाएगा. हाँ. I think I will donate my nanny to all of you for one week, because she will yell at you if you pick up the phone while watching KBC. If you're eating lunch with her and you try and text or pick up a call, you will get yelled at. I think it's a nanny, not a nanny. No, it's a nanny problem. But I think it's also a mother Shout. thing. For example, like even if I have to spend just 15 minutes with her na, at that time I can't pick up my phone. Yeah. And I shouldn't pick up my phone. It's not I can't, I shouldn't. And this ये छोटा सा रूल बना लो कि ये जितना है क्वालिटी होना और चाहिए. जेनजीज के लिए गर्लफ्रेंड बना लो. वो गर्लफ्रेंड फोन नहीं उठा पहले रही. शादी कर लो. मैं बच्चे की बात कर रही हूँ. No, but I'll tell you, I've hard coded it into my system. It is in my contract that I will work from 10 in the morning to 7 in the evening on working days. Weekends I'm off. आज मैंने एक client को झाड़ा है. Can you please see this? Can you please? I said we don't work the weekends. Khalas. End of story. I don't pick up my phone on the weekend. Actually. I think
See, the thing is, if you allow others to step on your feet, you will always be that doormat. But if you tell clients that you are not working, you can wait till Monday. None of us are in a service. Profitable. None of us are in a service. I am in services. I am in But services. none of us are in a service. Let me finish. None of us are in a service where somebody's life is at stake, somebody's house is burning down, or we need to give somebody an emergency medicine. We are not like that. It can wait for one day. It can wait for 48 hours. कुछ नहीं होने वाला है. Like, let it be your weekends. And I have done this intentionally because I was probably the other side a couple of years ago, but taking those weekends off to do truly things that I want. Right? Like, I haven't touched my phone even once since we sat here. I don't know if any of you have noticed, but as soon as I sat here, I mentally told myself, my work phone is here, my personal phone is here. दोनों उल्टे पड़े हैं. I haven't touched my phone even once. Work तो is because I'm not working. मैंने बस ऐसे carry कर लिया है, just in case to see कि क्या भसड़ हो रही है, but I will not respond. And I think if you set those boundaries for yourself and you're strict about them and you stick to them, other people will respect you for that. So we'll end entrepreneurship podcast and session with the hope that one day every entrepreneur very easily and confidently can achieve this and do this, because this is something mentally would really help them, but it's easier said than done. You have been able to do it. I think it's still struggling and we are still learning. I myself have been still struggling and learning, and every day is learning. But thank you so much everybody for being here and joining and sharing these stories. I hope it helps a founder on a rainy day when he or she is feeling कि यार अब सब खत्म है, नहीं खत्म है, बस उठने की बारी है, and hopefully things will be better again. If there's anything from the audience, we'd love to take that. Otherwise, we'd love to take a last picture with everybody and then we can end the session.